Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are watching the videos regularly and you all are practicing the exercises also that we are discussing and the explanation of the chapter. You're revising that also. You know that we are doing chapter 12 of your EVS book, and the name of the chapter is Road Safety. This chapter I have started a few days back, a few videos back, and you know that this chapter is important for everyone, for kids and for adult. Children, it is especially important for you because you are in a growing age and you need to know certain things that are related to road safety. Because at home you are under protection of your parent, in the school you are under the protection of your teachers and other staff of the school. But there are certain times when you are not under any of these protection, when the parents are not with you or when teachers are not with you. In such situation, what you should do, how you should take care of yourself, because life is precious. Everybody's life is precious. We all are important to our family, and it's our responsibility that we should take care of ourselves while we are outside home. Children, there is a slogan which I have repeated in my previous video also, that सावधानी हटी दुर्घटना घटी. जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो बेसिकली केयरलेसनेस और इग्नोरेंस की वजह से होते हैं. Carelessness on the part of a driver, or carelessness on the part of passenger, or carelessness on the part of any of the party, whether the person is driving or whether the person is on the road, moving on the road. And another reason that is ignorance. अगर हमें जानकारी नहीं है ट्रैफिक रूल्स की, तभी भी एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं. तो मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया था डूज एंड डोंट्स ऑफ रोड सेफ्टी. क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. एक झटपट रिकैप कर लेते हैं. पहला तो ट्रैफिक रूल्स हैं कि ऑलमोस्ट जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं वो सबको पता होना चाहिए. दैट वी शुड वॉक टुवर्ड्स आवर लेफ्ट. When we have to turn, we have to turn. When we have to turn from left, we should be on the left. And we should know the traffic signals. We should be aware of traffic lights. Children should not play on the road. They should not cross the road by running. They should not be overexcited when they are on the road. And if they are with elders, they should hold the hand of their elders. They should not take out their limb from the vehicle, whether moving or standing. They should not get into or get down any moving vehicle. Let the vehicle stop completely. Then only you should get in or get down any vehicle. While traveling by any two-wheelers, you should wear helmet, which is for our protection. We should be alert, not only by viewing, but we should be attentive through listening also, because at times we are not able to see the vehicles, but we should be attentive enough to listen to the sound of vehicle. कोई भी व्हीकल का साउंड से भी पता चल जाता है कि कोई व्हीकल आ रही है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है. If you are for some reason, अगर रात को अगर ट्रेवल करना पड़ रहा है, don't wear dark dresses, especially black dress नहीं पहनिए, क्योंकि वो अंधेरे में कभी कभी नहीं पता चलता है ड्राइवर को कि कोई आ रहा है. So try to avoid wearing black dress or dark dress during night if you are walking. Always cross the road on a zebra crossing, if there is a zebra crossing. Try to walk on footpath or sidewalk. Sidewalk पे चलिए या footpath पे चलना चाहिए. Don't climb any railing. Don't climb on any divider, because you may lose balance and you may fall on the road. These are certain basic rules which we should know. All the children should know. Do not
haste while climbing while getting into any vehicle, क्योंकि हड़बड़ी में भी क्या होता है कि बच्चे गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है. So all these things we should keep in mind, especially children should keep this in mind, because all these safety measures are for their benefit only, for saving their life only, for their safety only. So you should keep in mind all these things. And there are playgrounds for playing, so don't play on the ground. Wait for vehicle patiently, क्योंकि better late than meet any accident. ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो हर बच्चे को दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है. अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, if you see any accident, if you come across any accident, in such cases first aid is very important. First aid जो होता है वो बहुत important होता है in saving life of any injured person. तो first aid के बारे में मैंने आपको पिछली बार जो वीडियो था स्टॉप किया था इसी पॉइंट पर, first aid पर, कि if unfortunately if any person meets an accident, किसी का unfortunately कोई एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो ऐसी कंडीशन में क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प that can save the life of a person. अगर टाइमली फर्स्ट एड मिल जाता है तो हम किसी की जान बचा सकते हैं. लेकिन ये फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड जो होता है वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है. इट इज ओनली द हेल्प दैट कैन बी गिवन बिफोर एनी एम्बुलेंस और एम्बुलेंस अराइव्स और बिफोर द पर्सन इज टेकन टू द हॉस्पिटल, टू द डॉक्टर. डॉक्टर तक पहुंचने से पहले या किसी एम्बुलेंस के आने से पहले तक उसको बचाने का जो एक हेल्प होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. और इसमें ऐसे केसेस बहुत सारे हैं कि जहाँ पर कई ऐसे डेथ इम्पैक्ट हैं उसको भी रोक दिया गया है. इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड की हेल्प से वो ट्रीटमेंट दिया गया है. इमीडिएटली अगर ट्रीटमेंट उसको दिया गया है तो उसकी जान भी बचाई गई है. तो ये एक तरह का इनिशियल केयर होता है. इट्स अ टाइप ऑफ इनिशियल केयर गिवन टू द इंजर्ड पर्सन. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इनिशियल केयर. और जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट इट इज बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ का जो मामला होता है उस टाइम पे ये जो फर्स्ट एड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर कोई इंजर्ड पर्सन है, आप ऐसे किड नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन टेल. अगर आपको पता है तो किसी आप एडल्ट को बता सकते हो कि ये किया जा सकता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं. तो और इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए. फर्स्ट एड में वेट नहीं करना चाहिए. नेम ही है फर्स्ट एड, तो उस एड को देने में लेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिया क्यों जाता है फर्स्ट एड? एम ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है वैसे? फर्स्ट एड की कुछ एम्स भी होते हैं. क्यों फर्स्ट एड दिया जाता है वो हम कुछ लिख लेते हैं पॉइंट्स. सी, एज आई हैव टोल्ड यू, द फर्स्ट रीजन टू गिव फर्स्ट एड इज टू सेव लाइफ. टू सेव लाइफ. दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड इज to protect the casualty from getting more harm, to protect the casualty from getting more harm, और ज्यादा कंडीशन खराब ना हो जाए. ठीक है, to protect the casualty from getting more worse, you can say, to protect the casualty from getting more worse. Okay, the third reason is to reduce
दर्द भी हो रहा होगा, तो रिड्यूस द पेन। एंड जो प्रायोरिटीज हैं उसको भी रिड्यूस करना है, उसके कैजुअलिटी ट्रीटमेंट की जो फर्स्ट चीज़ें हॉस्पिटल में जाके होंगी उसको पहले ही थोड़ा सा कर देना, ताकि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। सो रिड्यूस द पेन एज वेल एज प्रायोरिटीज, दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पर प्रायोरिटीज थोड़ा आपके लिए बड़ा वर्ड है, इसलिए मैंने सिर्फ टू रिड्यूस द पेन किया है। नाउ जो गोल्डन रूल्स हैं फर्स्ट एड के, वो मैं आपके लिए लिखती हूँ। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड? Golden rules of first aid, and these rules are applicable in case of any injury. ऐसा नहीं है कि रोड एक्सीडेंट की इंजरी में ही ये फर्स्ट एड के रूल एप्लीकेबल हैं। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल इन एनी काइंड ऑफ इंजरी। किसी भी तरह की इंजरी है उसमें ये जो रूल्स हैं उस सब में ये एप्लीकेबल है। पहला तो जहाँ पे एक्सीडेंट है वहाँ हुआ है वहाँ पे बिना डिले किए पहुंचना, मतलब रीच द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, पहला है रीच द प्लेस, लिख सकते हैं या साइट भी बोल सकते हैं। आप प्लेस ज्यादा अच्छा समझोगे, साइट आपके लिए थोड़ा नया वर्ड है। तो रीच द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट as early as possible. To reach the place or site of accident as early as possible. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्सीडेंट जहां हुआ है वहां पे कोई जरूर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो वहां पहुंचना। अच्छा, डू नॉट वेस्ट टाइम इन आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। वहां पर पहुंच गए, अगर उसको थोड़ी सी होश है इंजर्ड पर्सन को, या वो पेन में है, कर रहा है, और उससे फिर अननेसेसरी क्वेश्चंस उस वक्त पूछना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट टाइम इन आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट वेस्ट टाइम in asking unnecessary questions. Okay? Do not waste time in asking unnecessary questions. अच्छा, एक और चीज है, ये एक पता कर लेना चाहिए कि कॉज ऑफ इंजरी कैसे लगी, ये एक पता रहना चाहिए, ताकि आगे अगर कोई पुलिस केस हो तो उसमें हेल्प हो, या डॉक्टर को बताया जा सके डॉक्टर के पास जाने के पास। सो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। ये इसलिए नहीं कि टाइम वेस्ट है, इसलिए कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, जो इंजर्ड पर्सन को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, साथ में अगर कोई पुलिस केस हो तो उसमें हेल्प हो सके। सो फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी। अगर वो रोड एक्सीडेंट है तो भी पता चले, और दूसरा कोई अगर एक्सीडेंट है तो दूसरी कोई किसी वजह से इंजरी हुई है तो उस केस में भी ये यूजफुल है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी, क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट होगा। फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी। ये जो पॉइंट है ये इसलिए बोला गया है क्योंकि हम ऐसे तो जनरली रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इंजरी किसी और कारण से भी हो सकती है। बर्न का हो सकता है या कुछ और हो सकता है, एक्सीडेंट किसी और वजह से कोई इंजर हो सकता है, तो इसलिए फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी। नेक्स्ट इज डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली। जो चीज सबसे पहले करनी है वही सबसे पहले कीजिए, ऐसे सीक्वेंस मत गड़बड़ाइए। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड दैट टू क्विकली, जल्दी से जल्दी करिए। ठीक है, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड दैट टू क्विकली। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली
जल्दी करना है, ठीक है, और क्वाइटली करना है, नॉट ओनली क्विकली बट क्वाइटली, बहुत हल्ला नहीं मचाना है। इससे क्या होता है, अगर ज्यादा हम खुद हल्ला मचाएंगे तो इससे क्या होगा, जो इंजर्ड पर्सन है वो और पैनिक में आ जाएगा। तो वी शुड नॉट क्रिएट पैनिक। तो डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्विकली, क्वाइटली एंड विदाउट पैनिक बोल सकते हैं, विदाउट पैनिक। मतलब ना खुद डरना है और ना ही इंजर्ड पर्सन को आपको डराना है, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। ना खुद डरना है और ना ही इंजर्ड पर्सन को आप डराए। तो आप जो भी फर्स्ट एड देना है उसमें जो काम पहले करना है वही कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट एड में। थोड़ी सी भी देरी होने से लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाता है। तो उसको क्विकली करना है, क्वाइटली करना है, बिना हल्ला मचाए, बिना डर क्रिएट किए, विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक। देन अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या करना है, वर्क टू स्टॉप दैट ब्लीडिंग, है ना, स्टॉप एनी ब्लीडिंग, क्योंकि जो खून जब ज्यादा बह जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। स्टॉप एनी ब्लीडिंग। किसी भी तरह की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले उस ब्लीडिंग को भी रोकने का उपाय करना चाहिए। कोई सॉफ्ट कपड़े से, क्लीन कपड़े से उसको हार्ड प्रेस करके ब्लड फ्लो को रोकना है, क्योंकि खून ज्यादा बह जाने से कंडीशन ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है, स्टॉप एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग। किसी भी तरह अगर इंजर्ड पर्सन का अगर कहीं खून बह रहा है तो उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है बाय प्रेसिंग विद क्लीन क्लॉथ, विद सॉफ्ट एंड क्लीन क्लॉथ। उससे पहले खून को ही रोकना है, ठीक। और भी रूल्स है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। Artificial breathing if आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन समवेयर कि अगर पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाती है, माउथ टू माउथ, अपनी सांस से दूसरों को सांस दी जाती है, ताकि और उसके जो चेस्ट होता है उसको प्रेस किया जाता है बाय प्रेसिंग द चेस्ट of the injured person and giving that artificial breathing. तो ये कब करते हैं, if breathing has stopped every second count, ठीक है, if breathing has stopped क्योंकि ना जो ब्रीदिंग का भी एक रेट होता है, उसका काउंट होता है। आप जब और सीनियर क्लास में जाएंगे देन यू विल स्टडी अबाउट दैट कि ब्रीदिंग का एक काउंट होता है। तो अगर वो स्टॉप हो गया है, वो ब्रीदिंग काउंट कम हो गया है, इन सच केस गिव आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना चाहिए। आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आप किसी एडल्ट को बता सकते हो कि हाँ हमें पता है, आपको ये करना चाहिए, ऐसे में आपको ये करना चाहिए। गिव आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड एवरी सेकेंड count. Then do not try to do much in a minimum time. ऐसा नहीं कि आपको जितना पता है सब करना शुरू कर दो, कि थोड़े समय में सारे फर्स्ट एड अटेम्प्ट कर दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट टू डू मच, ठीक है, डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, टू डू द मिनिमम, जो कर सकते हैं बस उतना ही करना है, ठीक है।
मतलब कि यहां पर लगे डू नॉट अटैम्प्ट टू मच। बहुत ज्यादा नहीं करना है कि ये भी कर लें, वो भी फर्स्ट एड दे दे, वो भी फर्स्ट एड दे दे, सारे फर्स्ट एड आजमा लें। नो, डू नॉट अटैम्प्ट टू मच, डू मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ। ओके, कम से कम उतना ही कीजिए जितना उसकी लाइफ बचाने के लिए जरूरी है। डू द मिनिमम विच इज एसेंशियल टू सेव लाइफ। ठीक है, do minimum that is essential to save life. Okay, do not attempt too much, do minimum that is essential to save life. जान को बचाने के लिए जितना जरूरी है वही करिए। ठीक है, एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। मतलब ऐसा ना हो कि कंडीशन उसकी वर्स हो जाए, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जो उसकी हालत है उससे भी बुरी बदतर हालत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस मिनिमम वही काम करना है जिससे कि लाइफ को सेव किया जा सके। एंड डू नॉट मेक द कंडीशन वर्स। सो यू कैन से प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। इसी में ऐड कर देते हैं प्रिवेंट द कंडीशन from getting worse। मतलब और बुरा हाल ना हो जाए। ये पूरा मैं एक पॉइंट इसको बोल रही हूँ कि डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। कि कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए। ये कुछ तो बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखना है व्हाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, और बताते हैं आपको फ्यू मोर पॉइंट्स। Next is do not allow people to crowd around the injured person because fresh air is very important in these conditions। तो अगर लोग, जब ऐसा होता है ना कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो लोग घेर लेते हैं, भीड़ लग जाती है, ये और भी खतरनाक हो जाता है। सो डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड बिकॉज फ्रेश एयर इज वेरी एसेंशियल। Do not allow people to crowd around। ठीक है, वो भीड़ ना लगा दें। Do not allow people to crowd around and because fresh air is essential। As fresh air is very important, I should write। जब लोग घेर लेते हैं ना तो फिर हवा नहीं आ पाती है, तो इंजर्ड पर्सन के लिए और ज्यादा खतरा हो जाता है। और नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग घेर लेते हैं इंजर्ड पर्सन को, तो ये नहीं होने देना है, कोई घेरा वेरा नहीं बनाना है। नेक्स्ट इज एक और चीज है कि डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरली। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई इंजर्ड पर्सन तो जल्दी उसके कपड़े उतारने लगते हैं लोग कि उसको सांस आने दो। अननेसेसरली ये काम नहीं करना है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस पॉइंट, बस आपको बता रही हूँ कि डू नॉट रिमूव एनी क्लोथ अननेसेसरली। किसी को एम्बैरस नहीं करना है। अगर जरूरत नहीं है तो उस इंजर्ड पर्सन के कपड़े आपको हटाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिमूव क्लोथ अननेसेसरली। चलिए लिख देते हैं वैसे, डू नॉट remove clothes of the injured
बिना रीजन के, जब अगर ज़रूरी नहीं है तो इंजर्ड पर्सन के आपको क्लोथ्स जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रीअश्योर द इंजर्ड पर्सन। अगर वो होश में है तो उसको एश्योर कीजिए, मतलब उसको और ऐसा उसकी एंजाइटी को कम करना है, क्योंकि जिसको चोट लगी होती है वो मेंटली अगर वो होश में है तो उसको भी पता रहता है कि उसे चोट लगी है। तो रीअश्योर दैट इंजर्ड पर्सन एंड दैट डॉक्टर विल कम, हम आपको अभी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। इस तरह से उसको रीअश्योर करते रहना है, इंजर्ड पर्सन को आपको रीअश्योर करना है। रीअश्योर द कैजुअलिटी and those around. To lessen the anxiety. मतलब जो भी जिसके भी साथ कैजुअलिटी हुई है उसको रीअश्योर कीजिए, अगर उसके साथ अगल बगल लोग हैं उनको भी रीअश्योर कीजिए, क्योंकि फिर बाकी लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। एंड दिस वे यू विल लेसन द एंग्जाइटी। टू लेसन द एंग्जाइटी, उसकी जो एंग्जाइटी है उसको कम करना है। सॉरी, LESSEN, लेसन, कम करना। टू लेसन द एंग्जाइटी, इसके लिए आपको रीअश्योरेंस भी करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फर्स्ट एड से रिलेटेड दैट एवरीबडी शुड नो, नॉट ओनली किड्स, नॉट ओनली एडल्ट, सबको पता रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो हाउ वी शुड टैकल, किस तरह से हमें इसमें बिहेव करना है। घबराना नहीं है। जो इंजर्ड पर्सन है उसके साथ अगर कोई है, उसका फैमिली मेंबर है, तो उसको भी रीअश्योर करवाना है और किसी तरह का पैनिक नहीं क्रिएट करना है। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी का लिम्स नहीं हिल रहे हैं, हाथ पैर में चोट लगी है, मे बी फ्रैक्चर हो, तो अननेसेसरी मूव भी नहीं करना है बॉडी को। उसको पेन हो रहा है, आपको अगर पता है कि उसको पेन हो रहा है, तो अननेसेसरी जो इंजर्ड पर्सन है उसके लिम्स भी हिलाने नहीं चाहिए कि मे बी उसको कोई सीरियस फ्रैक्चर हो और आपके हिलाने से वो और वर्स हो जाए। तो आपको ये जो एक चीज़ है कि उसको किसी तरह का शॉक नहीं दीजिए उसकी बॉडी को, क्योंकि कोई इंटरनल इंजरी हो तो वो और ज़्यादा हो जाए। तो किसी तरह का उसकी बॉडी को शॉक भी आपको नहीं देना है, उसके लिम्स को ज़्यादा हिलाना नहीं अगर ज़्यादा पेन है तो, बिकॉज कोई फ्रैक्चर का केस होता है तो यू नेवर नो, वो और एग्रीवेट हो जाए, वो और बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का फर्स्ट एड में ध्यान रखा जाता है। एंड एज इट इज़ टोल्ड कि अगर टाइमली हेल्प मिल जाती है किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंजर्ड पर्सन को अगर टाइमली हेल्प मिल जाती है तो वो उसके लिए एक सेकेंड लाइफ की तरह है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना इंजर्ड पर्सन को रोड पे देखते हैं तो देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। समटाइम इट हैपन्स, या इट इज़ सैड बट इट हैपन्स कि कोई पुलिस के मामले में नहीं फंसेगा, कौन अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा, ऐसा सोचते हैं। बट थिंक ऑफ द फैमिली ऑफ दैट पर्सन, जिसको चोट लगी है, उसके परिवार का सोचिए कि वो वेट कर रहे होंगे। तो ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो एज एन एडल्ट, आई एम सेइंग, नॉट एज अ चाइल्ड, बट यू कैन ऑफ कोर्स डिस्कस दिस थिंग इन योर फैमिली। आप फैमिली में ये बातें बता सकते हो कि अगर कुछ ऐसा हो तो वी शुड नॉट इग्नोर। अगर हम वहाँ हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमसे जितना पॉसिबल हो, जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल हो, वो हेल्प हमें डेफिनेटली करना चाहिए ताकि हम किसी की जान को बचा सकें। तो ये थी कुछ फर्स्ट एड से रिलेटेड बातें। दो रोड सेफ्टी की ही है, क्योंकि इंजरी रोड पे होती है, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। तो ये फर्स्ट एड जो है उससे रिलेटेड पॉइंट है। ट्राई टू रीड दिस पॉइंट, ट्राई टू इम्बाइब दिस, इसको समझिए और अपने घर में एडल्ट्स को ज़रूर बताइए अगर उन्हें नहीं पता है तो। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक एंड सम अदर कंटेंट। कुछ और कंटेंट बचा है वो कर लेंगे और कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।